who else could have been a better guest for this task? So she will be equipping you with all the necessary knowledge that you need to get your career started in data analytics. So over to you, Momina. Thank you, Amal. Thank you for the generous introduction. And hello, guys. Today we'll be seeing what a day in the life of a data analyst looks like and how you can crack it as well. So, okay, shall we move to the presentation, Amal? I'll show some slides and then we can have the Q&A session. What do you Yes, think? of course. You can share the screen, and towards the end, we'll be taking questions from the audience. Perfect. Perfect. Okay, is my screen visible? Yes, we can see it. Okay, guys. So a little about myself. I'm not a software engineer or a CS grad by my degree. I am an electrical engineer, and I made a switch. I think most of you are not from software or CS background. Hence you guys are in this workshop to learn to see how you can make the switch as well. Okay, moving on what my day looks like. Also, I would like to mention I was lucky that I just right at the starting of my career, I landed a job at QRMD, which had a reskilling program going on them, similar to the boot camp you have at Data AI Data Yard. So with my luck, I was able to make the transition very smoothly. But I think you guys are even more lucky because you have a platform like AI Data Yard that gives you a proper straight direction and a path to learn and to polish your skills as well. So here we are. What does my day look like? So my day looks like this. I have the important parts of my JD are data migration projects, which is basically you get some data. It may be of megabytes, it might be in terabytes. Okay, it might be in GBs, gigabytes, but yeah, terabytes of course a bigger number. So yeah, now data migration projects are such that you get some data, you transform it, you cleanse it, and then you load into your system. Whatever system you're working with, is it Oracle, is it Azure, AWS, whatever it might be. That's how um, for example, the data you see on Facebook, you give it the data and then it's loaded into their system. However, Facebook, of course, takes your data in a much more cleansed manner. Consider going to a hospital and they're taking your data, they're taking your vitals or something, and the hospital enters or inputs them in their record. So yeah, basically data cleansing, data transformation, data loading. That's one part of my JD, a major chunk. Jisko hum in easier language we also call it ETL, or in a more professional language. The second part of my JD is making reports to fetch data. Now, what these reports might look like? These reports might contain some useful data for client. Like, for example, um, a client has a client. Okay, let's go to what example can we take? For example, we have a client called Walmart. Walmart has a lot of products in dairy. Now, Walmart has given me a task to fetch all of their products, to fetch all of their dairy products and their pricing. Now, I will go and I will gather the requirements. Okay, what does the client want actually? The client wants all the products in dairy. The client wants their pricing. Does the client also want that what are their sizes? For example, 100 ml, 200 ml, or grams, or whatever. Does the client also want how many companies have competitors and who are the competitors? Does Walmart want some competitor specific report? Does Walmart want a pricing report? What does Walmart want? That's how I will gather requirement from the analyst so they can gather the requirements from the client directly, which in this case is Walmart. That's just a hypothetical case. Okay, next I'm supposed to find
data in the relevant tables. Of course, when you're working with bigger systems, you tend to have a lot of tables, you tend to have a lot of data. So that's on you to find the data. In this case, I find the data from the relevant tables. And then at the end, when I have gathered the data, I will format the report to make it look more presentable. I can add graphs. I can, maybe if the client wants for clarity, I can add pie charts. I can add some other things, whatever makes my client happy. So moving on. Sorry to cut you, Momina, but I was just wondering if we could switch to our own language and communicate a little in Urdu also, so it's more understandable to all of us. Yeah, that would be pretty easy. Yeah, thank that you. will work. Thank you so much, Amal. Thank you. No, अच्छा, ये तो हो गए हमारे मेजर जेडी के टास्क्स. एक डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेटा हमारे पास आता है, उसको हम वो हमारे पास अनक्लेंस्ड रॉ फॉर्म में आता है डेटा, उसमें कुछ गंद वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि आपके पास एक सिटीज का कॉलम हो और उसमें सिटीज के अलावा भी कुछ चीजें पड़ी हो, तो वो आपका काम होता है उसको एनालाइज करना, डेटा को क्लीन करना, कि सिटीज वाले कॉलम में सिर्फ सिटीज ही पड़ी हो, सिटीज वाले कॉलम में कोई और चीज ना पड़ी हो, जैसे नंबर्स एक्सेट्रा. उसके बाद आप डेटा क्लीनिंग के बाद डेटा ट्रांसफॉर्म करते हो. मतलब डेटा ट्रांसफॉर्म आप ऐसे ही करते हो कि अगर आपका मतलब सिटी का कॉलम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले रहा है, लाइक 12 कैरेक्टर्स ले रहा है, तो अगर मैं इसमें एक बहुत लंबा सिटी का कैरेक्टर डाल दूं तो वो इनपुट ना हो सके, फॉर एग्जांपल इस तरह की चीजें. एंड फाइनली आप डेटा लोड कर देते हो. इसी तरह रिपोर्ट्स होती हैं क्लाइंट स्पेसिफिक, किस तरह की क्लाइंट को रिपोर्ट्स चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करना. उसके बाद फिर डेटा टेबल्स को देखना. डेटा टेबल्स का अगर आपस में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, जैसे मैंने आपको ये वॉलमार्ट वाली एग्जांपल दी थी, तो उस रिलेशनशिप को देख के डेटा गैदर करना, उसको कोड करना, उसकी क्वेरी करना, और फिर एट द एंड डेटा को फॉर्मेट करना इनटू अ फॉर्मेट दैट इज मोर क्लाइंट रीडेबल, जिसको क्लाइंट ज्यादा अच्छे से समझ सकता हो. अगर मैं क्लाइंट को एक खाली सादा शीट निकाल दूंगी तो क्लाइंट या मैं खुद भी उस डेटा को नहीं समझ पाऊंगी कि ये शीट मुझे क्या कह रही है. खैर, इस पे हम आगे मूव ऑन करेंगे कि हम आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे रिपोर्ट्स, अच्छी रिपोर्ट्स बनाते हैं, हम कैसे डेटा माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, डेटा क्लेंजिंग क्या होती है. और इसके अलावा जो मेरी जेडी में होती हैं वो होते हैं मिसलेनियस टास्क. मिसलेनियस टास्क माइट इंक्लूड जैसे कोई जैसे कोई इशू आ गया सर्वर पे, जैसे कोई डेटा का इशू आ गया, कोई हमारे पास पाइपलाइन मिसिंग है, या फिर हमने अगर नई ETL पाइपलाइंस बनानी है तो वो कैसे बनेंगी, इस तरह के मिसलेनियस टास्क. लेकिन दे आर नॉट अ मेजर पार्ट. ऑल्सो बिगिनिंग में आपको जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो यही होंगी. लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट टूल्स companies normally use, or what tools I have used so far in my 3-year career. अच्छा, I have worked on. सबसे पहली चीज है, if you guys can see DBeaver हमारे पास एक डेटा मैनेजमेंट टूल होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट टूल. इसी थर्ड पॉइंट में आपको नजर आ रहा होगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है. इन दोनों में आप डेटा को देखते हो, डेटा के ऊपर कोड करते हो, आप जॉइंस लगाते हो या जो मर्जी करते हो. इसके अलावा आप सेकंड नंबर पे देख सकते होंगे Oracle बिजनेस ट्रांजैक्शनल इंटेलिजेंस. Since the company I'm working right now is an Oracle partner, तो फिर मैं Oracle के भी एनालिटिक्स के टूल्स यूज करती हूँ. इसके अलावा हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है Power BI, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज Python. ये दोनों चीजें भी इन दोनों चीजों पे भी मैं काम करती हूँ, और ये दोनों चीजें डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बहरहाल, एज इट माइट सीम कि भाई बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है. व्हेन आई विल क्रैक इट, you guys will see if I can become a data engineer switching from my field, so can you guys. आप लोग भी बहुत आराम से बन सकते हो. आप लोगों को ये स्किल सीखने में कोई टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह. Okay, moving on. Some real world applications, some things that we work on a daily basis, जो हम रोज करते हैं, जो कि हमारा काम नॉर्मली होता भी है. वो काम हमारा कैसा दिखता है? अच्छा,
ये देखें, हम लोगों के पास एक डेटा है, ठीक है। मैंने एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी पीजी डेटा सेट लिया है ताकि हम लोग समझ सकें कि हमारे पास नॉर्मली काम कैसे आता है। ये हमारे पास एक डेटा, ऑल्सो आई हैव नॉट मेंशन डेटा इंजीनियरिंग का सबसे पहला प्री रिक्विजिट, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है सीक्वल, एसक्यूएल। एसक्यूएल सीखने में आई गारंटी यू गाइस, आप लोगों को 2 या 3 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। एंड एसक्यूएल इज द मेन थिंग दैट यू गाइस शुड नो। अगर आपको एसक्यूएल आती है, कंसिडर योरसेल्फ हाफ अ डेटा एनालिस्ट और हाफ अ डेटा इंजीनियर। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। और एसक्यूएल के ऊपर आपको बेतहाशा कोर्स मिल जाएंगे। आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग सम लिंक्स एट द एंड, एंड मे बी अमल विल शेयर इट विद यू गाइस। अच्छा, तो अब हम एसक्यूएल में क्या कैसे देखते हैं, एसक्यूएल में क्या होता है, या जो भी एसक्यूएल कैसे चलती है, कैसे फंक्शन करती है। एसक्यूएल में मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास डेटा आया है, मैंने उसको अपने सीक्वल सर्वर में या किसी भी मैनेजमेंट टूल में लोड किया है। तो मेरे पास जी ये डेटा आया हमारे पास कि एम्प्लॉय आईडीज हैं, एम्प्लॉय नेम्स हैं, एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मैरिटल स्टेटस हैं और उनका सिटी है। ये मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करके सारा डेटा अपने एम्प्लॉय के टेबल से फेच कर लिया। अब ये तो मेरे पास एक डेटा आ गया। समझे, आप लोग एनालिस्ट हैं, आप लोगों को क्लाइंट ने बोला है कि भाई मुझे बताओ कि मेरे पास शिकागो में कितने एम्प्लॉयज हैं। ये तो चलें, फिर भी मैंने एक छोटा स्क्रीनशॉट लगाया ऑफ ओनली 10 एम्प्लॉयज। हो सकता है कि क्लाइंट के पास कोई 10,000 और 15,000 एम्प्लॉयज हों उसकी सब कंपनीज में। तो वो उसके लिए खाली शिकागो में एम्प्लॉयज कितने हैं ये फिगर आउट करना मैनुअली एक एक्सेल शीट में मुश्किल होगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू सिंपली टेल हिम बाय रनिंग अ सिंपल क्वेरी कि भाई ये सारे एम्प्लॉयज हैं आपके, ये 3 एम्प्लॉयज हैं, सोफिया, जेम्स एंड माइकल, जो कि शिकागो में रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि मुझे बताओ कि मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं और वो कौन कौन है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर सीक्वल का इस्तेमाल करेंगे, विल मेक यूज ऑफ इट एंड वी विल टेल हिम कि दीज 2 आर योर एम्प्लॉयज दैट आर इन आईटी डिपार्टमेंट, एवा एंड माइकल। ठीक है, शायद अगर आप लोगों को सीक्वल के ये स्नैपशॉट्स नजर आ रहे हो तो आप लोग देख सकते हो, इट्स नथिंग, इट्स बेसिकली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, select all from employees where employee city is equal to Chicago, select all from employees where department is equal to IT. It's a very simple language, बहुत simple है, बहुत high level language है। आप लोग पढ़ोगे उसका सिंटेक्स तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेरी में या कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। इसी तरह मैं जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव अनदर टेबल, लेट्स से डिपार्टमेंट्स का। इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट्स की आईडी है, डिपार्टमेंट के नेम है, डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं कि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर का क्या नाम है और उस डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं, उनका हेड काउंट है। अब लेट्स से आपने ये पिछला टेबल देखा एम्प्लॉयज का, आप कहते हो मुझे भाई जॉन डो के मैनेजर का नाम चाहिए। अब जॉन डो के मैनेजर का नाम तो इस टेबल में नहीं है, अब आप क्या करोगे? सही, अब जॉन डो हमने देखा था कि वो एचआर डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम है एलिस जॉनसन। तो अगर आप मैनुअली देख लो तो आपने शायद फिगर आउट कर लिया, लेकिन आप ये 10,000 एंट्रीज के लिए और मे बी इवन 100 एंट्रीज के लिए आप ये मैनुअली नहीं करोगे, राइट? सो फॉर टाइम सेविंग हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हम दोनों टेबल्स का आपस में ज्वाइन लगाते हैं, विच इफ यू विल टेक द सीक्वल कोर्स यू विल अंडरस्टैंड बेटर, और उनके आगे उन एम्प्लॉयज के मैनेजर्स के नाम ले आते हैं। जैसे कि अब हमारे पास, आप सेकेंड रो में देखो तो हमारे पास जॉन डो के आगे उसकी मैनेजर का नाम एलिस जॉनसन सामने आ गया, इसी तरह सोफिया के आगे उसका मैनेजर का नाम सामने आ गया। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद SQL, a lot of things. So this was just a small example कि how in real world you work with SQL और आप लोग कैसे उससे यूजफुल बनाते हो जब आपके पास ढेर सारा डेटा हो, मे बी 10,000, 20,000, 1 lakh, 1 million rows. So that's how you make things work with SQL. And
also let me focus on it. There's no data engineer, कोई data analyst नहीं है, कोई डेटाबेसेस से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि सीक्वल को स्किप कर सके. सीक्वल इज योर गेटवे, आप समझ लें गेटवे पास, एंट्री पास टू एनी डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर जॉब. आपको एसक्यूएल आती है, समझ लें यू आर रियली क्वालिफाइड. और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने 2 जॉब स्विच की हैं और मेजरली जितना भी डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर का काम होता है वो सेंटर्ड होता है अराउंड एसक्यूएल. इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई गारंटी यू 2 days और आपको सब कुछ 2 दिन में मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल कवर, जितनी भी आपको एक एंट्री लेवल इंटरव्यू में चाहिए होंगी. अच्छा जी, मूविंग ऑन. ये तो हमारी एसक्यूएल की थोड़ी सी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हो गई कि एसक्यूएल क्यों इम्पोर्टेंट है, एसक्यूएल होता क्या है, एसक्यूएल का क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो सकती है. एसक्यूएल से हम थोड़ी बहुत चीजें जो हमने एक जॉइन देखा, हम कैसे डेटा को गैदर कर लेते हैं. इससे आगे हम चलते हैं. हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल, मैं आप लोगों को 3 स्किल्स बताऊंगी बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आप लोगों को ढेर सारे स्किल से बॉम्ब कर दूं और फिर आप लोग डायरेक्शन सीख कर रहे हो. 3 स्किल्स आपको चाहिए डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर बनने के लिए. वो 3 स्किल्स हैं एसक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन. These are your 3 best friends. आपको ये तीनों आती हैं, there is nothing stopping you. कोई भी आपको किसी भी जॉब से बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, no matter आपकी डिग्री क्या है, आपकी डिग्री HR में, आपकी डिग्री फाइनेंस में, आपकी डिग्री इंजीनियरिंग में, आपकी डिग्री मेडिकल में, ये मैटर ही नहीं करेंगी अगर आप एसक्यूएल में, पाइथन में और पावर बीआई में एक्सपर्ट हो. एक्सपर्ट भी नहीं, इवन इंटरमीडिएट या बिगिनर हो. अच्छा जी, एसक्यूएल का हमने थोड़ा सा देख लिया. नाउ वील मूव ऑन टू पावर बीआई. पावर बीआई हमारे पास एक रिपोर्टिंग डेटा विजुअलाइजेशन टूल है. अगर मैं इसको प्रॉपरली बोलूं तो हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन टूल है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा डेटा फेच करना, अगर मैं ये डेटा 10 रोज का है, ये डेटा मैं आपको दे दूंगी, आप फिर भी समझ जाओगे. लेकिन अगर यही डेटा 10,000 रोज का होता तो आप लिस्ट ही बार बार देखते रहते, राइट. इस डेटा तो सही निकाल दिया, लेकिन मैं उसको क्लाइंट को कैसे दूं हु इज नॉट टेक savvy, जिसको टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस से गर्ज है कि मुझे बस थोड़ा सा बता दो कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है. तो क्लाइंट के लिए हम फिर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज करते हैं जिनसे हम अगलों को डेटा बहुत ही आसानी से दिखा सकें. दैट्स मोर ईजियर फॉर देम टू रीड एंड दैट्स मोर ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड. अब ये डेटा मैं देखूंगी, मेरा तो टाइम इतना ज्यादा जाया हो जाएगा इस डेटा को देखने के लिए. सो नाउ here comes the next step, पावर बीआई का. पावर बीआई ऑल्सो, पावर बीआई की सिस्टर भी होती है टैबलो. पावर बीआई लर्न कर लें, टैबलो लर्न कर लें, फिग्मा लर्न कर लें, यू नीड टू नो वन डेटा विजुअलाइजेशन टूल. बाकी सब चीजें ऐसे ही चलती हैं, इससे स्विच कर लो इस पे आ जाओ, इससे स्विच कर लो इस पे आ जाओ. ये हमारे पास एक रिपोर्ट है पावर बीआई पे बनी हुई. नाउ आई एम गेसिंग ये रिपोर्ट जो है, ये डैशबोर्ड है जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं मोर प्रोफेशनली. ये डैशबोर्ड है. इस डैशबोर्ड को कोई भी बंदा देखेगा, अपनी एक कंपनी का सीईओ देखेगा ना, तो वो फौरन से उसको समझ आ जाएगी. उसको समझ आ जाएगा कि भाई मेरी सबसे ज्यादा सेल्स किस लोकेशन में हुई है, उसके बाद मेरी सबसे लोएस्ट सेल्स किस लोकेशन में हुई है. जैसे कि इस केस में हमने बार ग्राफ बनाया है. ऑल्सो आप लोग देखो कि सिर्फ हमने एक डैशबोर्ड बनाया है, हमारे पास एक पेज है, उसमें उसकी सेल्स बाय लोकेशन भी आ गई, हमने डाल ली. उसमें उसी डैशबोर्ड के अंदर हमने उसकी सेल्स एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय ईयर भी डाल दी. उसी सेल्स की डैशबोर्ड के अंदर हमने उनकी सारी सेल्स बाय सब कैटेगरी भी डालनी कि भाई डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, टैबलेट, होम स्टूडियो. उसी डैशबोर्ड के अंदर हमने ये भी दिखा दिया कि कौन सा प्रोडक्ट है दैट वाज मोस्ट रिटर्न्ड, इफ यू कैन सी दिस, हेल्थ एंड ब्यूटी. उसी डैशबोर्ड के अंदर हमने ये भी डाल दिया कि हाउ मेनी products were actually delivered and how many products were returned. उसी डैशबोर्ड के अंदर हमने ये भी डाल दिया reason for return, right? See how readable this is, how much of an information this is giving you. This is like the perfect example of what a data analyst does. The job of a data analyst is to clean the data और फिर उसको ऐसा अंडरस्टैंडेबल बनाना कि कोई भी लेमैन, इवन कोई 7th 8th ग्रेड का बच्चा भी उसको डेटा को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. क्योंकि आप क्लाइंट को
आप अपने कोलीग्स को इन्फॉर्मेशन से बॉम्बार्ड कर सकते हो, आप एक दूसरे को कर सकते हो, दोस्तों से कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसा डेटा होता है जो वो फौरन से देखे उसको। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ है, जैसे हम कह देते हैं कि ये अमेजोन का सीईओ है फॉर एग्जांपल, जेफ बेजोस, बट अमेजोन के सीईओ के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो नेटी ग्रिटीज में जाए। उसको तो अपनी सेल्स से मतलब होगा, उसको तो मतलब होगा मेरे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, जिनको मैंने सबसे ज्यादा फीचर करना है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा किस लोकेशन में सेल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी हियर, यहाँ पे हमें सेल्स बाय लोकेशन में पता चल रहा है कि ग्रेटर एक्रा में सबसे ज्यादा सेल है और अपर वेस्ट में सबसे कम सेल है। तो अमेजोन का सीईओ क्या करेगा, इस रीजन में अपने एडवर्टाइजमेंट्स को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अपर वेस्ट में भी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट्स को बढ़ाएगा। इसके अलावा वो देखेगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोडक्ट जो है, अगर वो हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रिटर्न हो रहे हैं, तो ही माइट स्टार्ट इन्वेस्टिंग लेस इन हेल्थ एंड ब्यूटी। ये हेल्थ एंड ब्यूटी डिपार्टमेंट को बोलेगा यार कि अपनी सर्विसेज बेहतर करो और डू वट एवर टेक्स, ठीक है। इसी तरह वो देख सकता है कि कितने % हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड हो रहे हैं और जो रिटर्न हो रहे हैं उनकी परसेंटेज क्या है, और फिर वो देख सकता है कि रीजन फॉर रिटर्न क्या है, राइट। रीजन फॉर रिटर्न, अगर रॉन्ग आइटम डिलीवरी है जो कि आप बॉटम राइट पे देख सकते हो, तो उसको सही करें, उस पर वर्क करें। अगर डिफेक्टिव आइटम क्वालिटी है तो उस पर वर्क करें। इट गिव्स the client a total clarity about his business, what he needs to do in just a page, right? This is a very powerful tool. Now the third tool is Python. Python के ऊपर मैं examples यहाँ पे नहीं ला सकी, लेकिन Python is a very strong tool again for data analysis, for data engineering, हर चीज के लिए. Now moving on, how to start a career with no experience and or no relevant background. I am a person who did not have any experience, who did not have a relevant background. I might call myself lucky because I had studied a few coding subjects in university, but I was so scared of coding. I did not want to do the projects. मैं बहुत ही uninterested होती थी जितने भी कोई computer sciences के courses आ जाते थे, और मेरा कोई relevant background, कोई internship नहीं की थी. But मैंने start किया, तो so can you guys. It's not difficult at all. These three, as I previously said, ये तीन चीजें, ये तीन skills आपके best friend हैं. आप लोग इन तीन skills को सीख लोगे, you're in the job market. You're in the job market for good. अच्छा, मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं कि आप लोग सबसे पहले, मेरे ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, आप लोग सबसे पहले SQL से शुरू करो, SQL से शुरू करो. SQL का आप कोई भी कोर्स लो. SQL एक तो सबसे ज्यादा आसान है. दूसरी चीज ये कि SQL इज प्रोबेबली वो टूल है जो कि अगर पावर BI और पाइथन नहीं भी यूज कर रही ना कोई भी कंपनी, मतलब एक कंपनी लो लेवल पे काम कर रही है, वो बाकी चीजें नहीं भी यूज कर रही ना, वो SQL या SQL लाजमी यूज करती है, ठीक है. तो SQL इज ऑन नंबर 1. अगेन, पावर BI एंड पाइथन, ये तीन चीजें आपको आती हैं, कंसिडर योरसेल्फ अ मास्टर. ऑलराइट, okay, moving forward, important links. Yes, these are some important links. Google Data Analytics Certification, ये आप लोग करो, ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है. Coursera पे आपको इस पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाते होते हैं. एक SQL कोर्स in 8 hours, Power BI for beginners का कोर्स है, Python courses for beginners. You can find them on YouTube, Coursera, Udemy, anywhere. Also, AI Data Yard is an exceptional platform that has been working in this domain for a long time now. And I think that अगर आप लोगों के पास AI Data Yard की डायरेक्शन होगी, this will make things more streamlined. आप लोगों के लिए और ज्यादा गाइडेंस और कोचिंग होगी और आसानी होगी. लेकिन इसके अलावा these are the links जो अगर आप लोग अपने उस पे करना चाहो, तो these links will also help you a lot. Moving on, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्किल्स का होना एक बात होती है. स्किल्स आप लोगों के पास होंगे, स्किल्स शायद मेनी ऑफ यू पीपल माइट हैव इवन नाउ, अभी भी शायद आप लोगों के पास बहुत सारे स्किल्स होंगे, लेकिन आपने उनको अपनी CV पे कैसे रिफ्लेक्ट करना है.
आप लोगों को अपनी सीवी अपडेट करनी है, आप लोग अपनी एजुकेशन बिल्कुल मेंशन करें। आप लोग इंजीनियर्स हैं, आप लोग बिजनेस बैकग्राउंड से, आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से, आप लोग सोशल साइंसेज से हैं, डू मेंशन इट। बट आप लोग अपनी सर्टिफिकेशंस को हाईलाइट करें। आप उन चीज़ों को, आप अगर आप लोगों ने कोई सेमिनार्स लिए हुए हैं, अगर कोई बूट कैंप लिया हुआ है, डेटा का बूट कैंप लिया हुआ है, सेमिनार्स लिए हुए हैं, कोई सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, तो उन सबको आप एक अच्छी जगह पे हाईलाइट करें, उनके लिंक्स अटैच करें। इसके अलावा फाइंड प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब और एनी प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर, जो बेशक बने बनाए हैं, जो ऑलरेडी बने हुए भी हैं, आप उन लोगों को उन प्रोजेक्ट्स को रेप्लिकेट करें फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा मुझे यूट्यूब पे एक प्रोजेक्ट दिखा रहा है ना, उसने स्टार्ट से स्टार्ट किया और मुझे एंड तक दिखाता गया, मैं उसी के सारे स्टेप्स फॉलो करूंगी स्क्रैच से। बेशक वो कोई हो, बेशक उसने इतनी बड़ी चीज नहीं भी की हो, लेकिन अगर उसने छोटा छोटा करके एंड तक लेके गया ना, मैं एंड तक उस प्रोजेक्ट को बनाऊंगी। इससे दो चीजें होती हैं, मुझे मेरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू दिस। दूसरी चीज ये, आप ये प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट को एज अ साइड करके, फॉर एग्जांपल यू मेड अ पावर बीआई डैशबोर्ड ऑफ सेल्स, इसी तरह का डैशबोर्ड आपने सेल्स से बनाया यूट्यूब से देख के सारा कुछ, इसकी डिटेल मेंशन करो आप लोग अपनी सीवी पे। दिस विल ब्रिंग अलॉट कि हाँ भाई, इस बंदे ने एक इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, इसको हैंड्स ऑन है, इसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ से ये निकाल सकता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि व्हेन यू हैव रेप्लिकेटेड द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और यूट्यूब प्रोजेक्ट्स, हाईलाइट योर प्रोजेक्ट्स ऑन योर सीवी। प्रोजेक्ट्स का एक अलग से आप कॉलम या कोई भी टैब बनाओ, उसके अंदर आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को सीवी में डालो। क्योंकि हम लोगों की एजुकेशन, मेरी एजुकेशन इन दिस केस, मेरी एजुकेशन इस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं करती कि मैं बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेंशन इट समवेयर कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जी ओ हो वाह वाह वाह, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक डेटा इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं बस उसी बलबूते पे मेरी जॉब लग जाएगी। नो, पीपल माइट नॉट इवन कंसिडर मी। बट जब मैं अपनी सर्टिफिकेशंस को, जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करूंगी, जब मैं उन सब चीजों को, वॉलंटरी वर्क को हाईलाइट करूंगी जो कि मैंने अपने एंड पे किया है, अपने स्किल्स को हाईलाइट करूंगी, पीपल विल टेक मी सीरियसली कि यस भाई, दिस बंदी और दिस बंदा, इसके पास स्किल्स हैं, इसके पास राइट स्किल सेट है। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हाउ टू कॉम्प्लीमेंट योर एजुकेशन, जब आप लोग एक फील्ड शिफ्ट की जॉब की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है। एंड लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Momina. So I'm going to open the floor for any questions that you guys might have. Please raise your hand and unmute yourself and ask them. Okay, we have Seemab, Heather. You can go first. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मेरा क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी सारा आपका सेशन देखा है। इट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर मी। मैं इस टाइम यूसीपी से बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा हूँ राइट नाउ, एंड आई एम करंटली इन द 7th सेमेस्टर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने डेटा एनालिटिक्स वाली फील्ड के अंदर जैसे जाना है, तो इसका रोड मैप के मुताबिक इसमें जस्ट कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, लाइक मैं यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, जिसमें पावर बीआई है, एसक्यूएल है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा माइनिंग, डेटा पिवटिंग फॉर फ्रॉम एक्सेल वगैरह। तो मैं ये सब कुछ करने के बावजूद इसके बाद मैं इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहा हूँ, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ। मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एज अ स्टूडेंट के तौर पे मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही है कि मैं उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से इंडस्ट्री से जाकर किस तरीके से उनको सॉल्व करवाऊँ। लाइक इंडस्ट्री वाले ऑब्वियसली सबसे पहले अपना डेटा वगैरह नहीं देते, तो उनके ऊपर मैं प्रैक्टिकली अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहूँ विदाउट इंटर्नशिप, तो वो मैं किस तरीके से मैं कर सकता हूँ? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसके लिए ना, इफ यू वांट सम डेटा सेट ना, खाली आपको डेटा सेट चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, तो एडवेंचर वर्क्स, शायद आपको पता हो एडवेंचर वर्क्स, अगर नहीं पता तो एडवेंचर वर्क्स इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस। उससे आप ना बहुत सारे टेबल्स होते हैं, एडवेंचर वर्क की पूरी डेटाबेस है, उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है जो कि आपका ओपन सोर्स है, आप उससे डेटा लो,
आप उससे कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, सीक्वल में बनाओ और फिर बेशक उसको पावर बीआई में ट्रांसलेट करो। इसके अलावा एडवेंचर वर्क्स के अलावा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर अदर डेटा सेट्स की साइट एज वेल। उसमें तो आपके पास बाकायदा ऑप्शंस होती हैं कि आपको कार्स का डेटा चाहिए, कार से रिलेटेड चाहिए, आपको किसी रिटेलर से रिलेटेड डेटा चाहिए, आपको किस तरह का डेटा चाहिए। तो एक और डेटा सेट्स की वेबसाइट है। आपको अगर डेटा इंडस्ट्रीज नहीं प्रोवाइड करती ना, क्योंकि जाहिर है उनके अपने पॉलिसीज होती हैं, तो यू कैन वेरी वेल डाउनलोड डेटा सेट्स फ्रॉम दीज वेबसाइट्स। ऑलराइट, ठीक है। मैं मजीद एक छोटा सा क्वेश्चन एंड पे ऐड करना चाहूँगा। वो क्वेश्चन जस्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर आजकल क्या डिमांड चल रही है डेटा एनालिस्ट को के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, कि क्या डेटा एनालिस्ट इन पाकिस्तान एज एन इमर्जिंग फील्ड है या नहीं है, और आई स्विच माई जॉब टू द डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट। ओके, अच्छा ठीक है। नाउ जब मैं डेटा एनालिस्ट की बात करती हूँ ना, तो मैं डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर को ऑलमोस्ट एक साथ बकेट में डालती हूँ। क्योंकि इसका सीन ये है कि ना पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर्स, आप डेटा एनालिस्ट हो, आपसे वो डेटा इंजीनियरिंग की जॉब भी कहीं ना कहीं ले रहे होते हैं। अगर आप डेटा इंजीनियर हो, वो आपसे एनालिसिस की जॉब भी कहीं ना कहीं ले रहे होते हैं। तो दिस मेक्स इट वन ऑलमोस्ट इफ यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास है दूसरी चीज हमारे पास सॉरी क्या थी, डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, डेटा साइंस इज अ वेरी वेल पेइंग फील्ड, ए बी, बट ऑल्सो सो आर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। लेकिन बी हमारे पास ये चीज है कि डेटा साइंस का अगर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में स्कोप देखोगे ना, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में स्कोप है, बट इट्स ऑल्सो लिमिटेड टू सम कंपनीज। लेकिन डेटा साइंस का अगर आप रिमोट जॉब्स के लिए, अगर आप बाहर की जॉब्स के लिए देखोगे, तो डेटा साइंस की बहुत सारी जॉब्स हैं। डेटा साइंस इज वेरी मच वेल पेड और इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड। जहां तक दोनों के स्कोप का सवाल है, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, इन तीनों का स्कोप इज ऑन द राइज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा। आजकल आप जहां भी जाते हो, जिस वेबसाइट पे जाते हो, जहां मर्जी जाते हो, लोग आपसे आपका डेटा इनपुट कराते हैं। बी इट जॉनी जुगनू पे आप जाओगे ना, वो आपसे कस्टमर सर्विसेज का डेटा इनपुट कराते हैं। कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई बंदा पीछे बैकएंड पे बैठ के उस डेटा का एनालिसिस कर रहा होता है, या कोई ना कोई डेटा साइंस का बंदा उस पर कोई मॉडल बना रहा होगा। तो द जॉब्स आर नेवर एंडिंग, इंशाल्लाह। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Okay, over to the next person. We have Mohammed Shoaib. You can unmute yourself and ask the question. Hello, Shoaib. Hello, are you there? Okay, we'll take Shoaib's question in the end. We have Aisha Iqbal. You can go ahead and ask your question. It's okay, Shoaib. You can type the question in the chat and we will take it in the end. Aisha, you can go ahead meanwhile. Yes, Aisha. Can you hear us? I guess she's not here, so we'll take one question. Okay, she's here. Please unmute yourself. Okay, can you Okay, type your Shreya. question in the chat? जी, sure, आप type कर लें. Someone's asking a cloud-related question. You can answer that in the meantime. Okay. How much cloud knowledge do you need to acquire being a data analyst? Being a data analyst, cloud knowledge is not required. Not really. But in bigger companies, you get to see, आप खुद ही experience करते हो with time कि cloud कैसे function कर रहा है, उन लोगों के servers कैसे हैं और चीजें कैसे चल रही हैं, वो आपको फिर
विद एक्सपीरियंस खुद ही पता चलता रहता है। और अगर आप एक और डेटा की जॉब होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इफ यू आर अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो आपका सारा काम क्लाउड से, सर्वर से, डेटाबेस मैनेजमेंट से, कि कौन सा सर्वर पे कितना डेटा है, कौन से सर्वर पे कोई बग आ गया, कौन सा सर्वर फिक्स्ड है, किस क्लाउड पे हमने माइग्रेशन करनी है, ये सारी चीजें आप तब डील करते हो। लेकिन मोस्टली आपको क्लाउड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज इज अ वेरी गुड एड ऑन, लेकिन डेटा एनालिस्ट के लिए इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। विद टाइम आप जिस कंपनी में होते हो उसके क्लाउड से आपका पाला पड़ता रहता है, तो आप सीख लेते हो। Okay, there's. Can we take this question, Yes, of Mohammed? course. Go ahead. I have one query that you mentioned about ETL. Could you please mention some tools for ETL, and do we need data warehouse knowledge for this role? Thanks. Okay. ETL, some tools for ETL. ETL के लिए हमारे पास Databricks होता है, हमारे पास SQL Server होता है, SSMS Microsoft का जो हमारे पास टूल है। तो आप इन चीजों से बिगिन करो। बट ऑल्सो ETL में आपको शायद जाते साथ पाइपलाइंस बनाने का नहीं कहेंगे, लेकिन ETL में आपको जाते साथ डेटा क्लेंजिंग करने का जरूर बोलेंगे। तो उसके लिए अगेन डेटा सेट्स लें, डेटा क्लेंजिंग करें, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करें। That's also going to help you a lot. But of course, ETL tools like that are also going to be useful. Okay. Amal, can we take questions from here? Yes, of course. Go ahead. You can take questions from the chat. Okay. Okay. Thank you for the insightful session. What strategies or tips would you recommend for securing a good internship? Additionally, in your opinion, which companies are known for offering? Okay. Exceptional opportunities for data science interns. अच्छा, if तो you are a data science intern, अच्छा पहली चीज ये कि मैं सबको बता दूं, एक बहुत important चीज होती है रेफरल। और रेफरल from LinkedIn is आजकल बहुत easy और बहुत ही आप सब लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई जॉब चाहिए तो what I've also told my brother who's just graduated कि तुमने क्या करना है, अगर तुमने किसी कंपनी में जॉब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो AI डेटा यार्ड ही है, अगर तुम्हें AI डेटा यार्ड में जॉब चाहिए तो कनेक्ट विद पीपल हु वर्क इन AI डेटा यार्ड, उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेटा साइंस की जॉब चाहिए AI डेटा यार्ड में, तो आप डेटा साइंटिस्ट जो इस कंपनी में काम करता है उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उससे कहो कि आपको रेफर करे, या आप उनकी HR से डायरेक्ट बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंपनी में कोई ओपनिंग आई है तो आप उस कंपनी के लोगों को रीच आउट करो, उनसे कहो कि आपको रेफर करें, उनसे पूछो कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, उनसे पूछो कि टूल्स क्या हैं जो कंपनीज में यूज होते हैं और कैसी चीजें होती हैं। ये आप सब लोग जरूर इम्प्लीमेंट करें। दैट्स व्हाट आई डू टू, दैट्स व्हाट आई हैव डन एज वेल। So that's one thing everybody should do. Everybody should make good use of LinkedIn. अच्छा, दूसरी चीज सॉरी आपका मिस हो गई थी, वो थी कि डेटा साइंस की कौन सी अफीफा कंपनीज एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही हैं। आई थिंक many big companies, you can take systems, you can take I2C, you can take QRMD, you can take Educative, RBsoft, सब कंपनीज ही डेटा साइंस की एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं। दो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में आई बी स्केप्टिकल, क्योंकि मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा अब आई एम आउट ऑफ टच, तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है। बट यस, यू कैन अगेन सर्च ऑन लिंक्डइन। और स्ट्रैटेजीज फॉर सिक्योरिंग ए गुड इंटर्नशिप ऑल्सो गो फॉर रेफरल्स। दूसरी चीज ये है कि इंटर्नशिप के पॉइंट पे यस, रेफरल्स डू वर्क, तो या दैट विल बी योर बेस्ट बेट। Hi, okay, Hania is there. As a fresher in data analytics, how can we get the job if we're different? Okay, Hania, सबसे पहले तो आपका मैथ बैकग्राउंड है, which is a very good background for a data analyst की जॉब। तो उसमें आपको कैसे जॉब मिल सकती है एज अ डेटा एनालिस्ट? यू हैव योर स्किल्स, आपको SQL आती है, आपको पावर BI आपने सीख ली, उस पर थोड़े बहुत डेमो प्रोजेक्ट्स कर लिए, आप डेटा एनालिस्ट की जॉब पे अप्लाई करो, अपनी अच्छी सी CV बनाओ जिसमें आप अपनी डेटा एनालिस्ट के स्किल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी क्वालिफिकेशन जो कि इस केस में आपके कोर्सेज होंगे, इसके अलावा हो सकता है आपने अपनी बैचलर्स की मैथ्स डिग्री में ढेर सारे कोर्सेज किए हों जिनमें जो रेलेवेंट हो, तो आप उनको शोकेस करो, बजाय इसके कि आप अपनी डिग्री में मैथ्स रिलेटेड पोर्शन को शो करो। आपकी डिग्री में मुझे लगता है लाजमी थोड़े बहुत ऐसे कोर्सेज होंगे जो इससे रेलेवेंट होंगे, कोडिंग, डेटा वगैरह से, उनको भी बहुत अच्छा शोकेस करो। तो एंड कीप अप्लाइंग टू डेटा एनालिस्ट की जॉब, आस्क पीपल फॉर रेफरल्स, आस्क पीपल टू रेफर यू।
उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल ओके थैंक यू आयशा आई एम currently pursuing BScs okay that's very great as a CS major freshie okay I'm interested in data side how can I utilize my 4 years okay in the long run I have strong skills PS I'm also taking Google okay yes it focuses on R Tableau R is a substitute for Python Tableau SQL and Sheets but as a beginner so okay सबसे पहले तो आयशा you're very young you're in your freshman year and I'm really proud of you that you're doing all of this on your own तो इसके अलावा आप कैसे सबसे पहले तो आपको अगर डेटा साइड पे आना है इट्स गुड फॉर यू कि आपने अभी से थोड़ा सा माइंड मेकअप किया है बट थोड़ा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो आप दूसरी चीजों पे भी फोकस करो बैक एंड पे वेब डेवलपमेंट पे सब चीजें साथ साथ सीखो जब आपका डेटाबेसेस का कोर्स आएगा आप डेटाबेसेस के कोर्स में ज्यादा फोकस करना और देखना इसके अलावा अभी 4 साल है हो सकता है आप कहो कि भाई मुझे तो वेब डेवलपमेंट बहुत पसंद आ गई है मैं नहीं डेटा साइड पे जा रही हो सकता है आप ना कहो ऐसे बट यस अच्छा बिगिनर may it will be overwhelming just focus on one skill for now like I think you'll be having your summer vacations unme aap ek hi skill seekho aur usi ko master karo I think SQL and Power BI या Power BI if not Power BI Tableau कर लो SQL कर लो इसी Google Data Analytics के कोर्स में and keep it अभी के मैं पहले ये कर लूं फिर अगर मेरी वैकेशंस बचती हैं तो I'll go for R और Python और R तो I think आप सीख ही रहे होगे अभी या आप सीख लोगे किसी भी तरह से कोर्स में अपने बैचलर्स की डिग्री में तो उसके बारे में बेशक अभी परेशान नहीं हो okay Avais taking Avais's question if somebody is from a different career path and want to join as a data analyst as a part time like I am doing Avais like I'm okay doing software engineering and my big path is cybersecurity that I'm currently doing I also need data knowledge in this field so I want some experience studying this field and is my decision right Acha, Wes, I would actually recommend joining somewhere part-time or something, but I think part-time jobs are sometimes difficult to find, but it's not impossible. Yes, cyber security के लिए भी you definitely need some data knowledge. So you want some experience to study in this field. I would say learn on your own. I'm not sure कि cyber security के courses में data किस हद तक पढ़ाते हैं. I think कुछ ना कुछ तो पढ़ाते ही हैं. Basics आपकी cover हो ही जाती हैं. तो learn the basics from there, practice on your own, and उसके बाद keep applying to jobs. बेशक वो part time हो, बेशक वो full time हो. Also there are some remote companies जो कि part time भी flexibility show करती हैं. As long as their work is being done, you're free. तो yes your decision is definitely right also अगर तो आप अभी ही cyber security कर रहे हो ना I don't think it's very different I think it's pretty similar अगर आप software engineering की degree ही कर रहे हो तो inshallah this is I think your decision is going to be right inshallah Muzammil yes Muzammil you can unmute yourself and ask your question Okay, thank you, ma'am. My question is that I am recently unofficially graduate with a degree of software engineering. So my question is that कि मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि मैं जो है ना इंटर्नशिप और जॉब के लिए मतलब देख रहा हूँ पोजीशन तो मसला ये आ रहा है कि कंपनी जो है डिफरेंट कंपनीज हैं वो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रही होती है 2 साल का तो मैं फिर उसके बावजूद भी मैं अपनी सीवी जो है फॉरवर्ड कर देता हूँ लेकिन वहाँ से कोई मतलब इंटर्नशिप वगैरह मतलब वो एक जो होता है ना आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा तो इस चीज़ को हम किस तरह ओवरकम करें और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी सीवी यहाँ पे अगर शेयर कर सकता हूँ आप उस पर फीडबैक दें इससे ये हो जाएगा कि बाकियों के लिए भी जो है ना वो एक डेमोस्ट्रेशन भी हो जाएगा और चीज़ों से पता चलेगा कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं ओके श्योर मुजम्मिल मैं आपको वैसे थोड़ा सा अभी बता देती हूँ और आप बेशक अपनी सीवी शेयर कर लो इन द एंड वी कैन गो थ्रू इट एंड हैव अ लिटिल फीडबैक ऑन इट अच्छा एक चीज ये है कि देयर आर सम सॉफ्टवेयर हाउसेस जो कि आजकल बल्क में हायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चे ग्रेजुएट हो गए न्यू फ्रेश ग्रेड्स आ गए हैं तो दे आर हायरिंग इन बल्क उनको लुक फॉर दैट और कुछ डेटा आई थिंक देयर आर मेनी जॉब्स जो कि ना 0 to फ्रेश को भी प्रेफर करती हैं फ्रेश ग्रेड्स होते हैं तो उनको उनकी कंपनी की डोमेन सिखाना ज्यादा इजी होता है उनको टारगेट करते हैं दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज क्या थी आपकी दूसरा चीज़ मेरा ये था कि मैं सीवी अपनी यहाँ पे जो है ना शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन पे आप उस पर अगर फीडबैक दे दें हाँ सही है वी कैन गो
Yes, you can share. Okay, one second. Can he, Aman? We'll take few more questions and we'll see if we can do it in the end so that we can Okay, cater to more questions. sure. Perfect, Okay. perfect. Thank you. ओके ऑल्सो मुजम्मिल आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करो ना उसके किसी ना किसी बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट आप लाजमी भेजो, उनसे बात करो, उनको मैसेज ड्रॉप करो। ढेर सारे लोगों को बेशक आप कनेक्शन रिक्वेस्ट उस कंपनी के भेज दो और उनको कहो कि मुझे रेफर करें प्लीज, एंड आई एम, और मेरा ये स्किल सेट है एंड आई रियली नीड दिस जॉब नहीं, बट आई रियली वांट टू वर्क इन दिस कंपनी एंड एटसेट्रा, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, Hamza का question है, how can someone join the data industry after 3 years of experience in another industry like electrical engineering? Do we only have to do project or should? अच्छा Muzammil, sorry Hamza, I have an example. I had my junior who had an experience of 2 years, I think, in mechanical engineering, and he switched from mechanical to the data engineering side. So now how did he do that? उसने SQL सीखी, उसने ना अपना जो previous role है इस previous company था ना, उसको भी ना उसमें भी जो थोड़े बहुत, हालांकि he was a mechanical engineer, लेकिन उसमें फिर भी जो थोड़े बहुत Excel की चीजें वो कर रहा था, जैसे pivoting या कोई इस तरह की चीजें, वो भी डाली अपनी previous job की। दूसरी चीज उसने ये की कि SQL के courses किए, Google की data certification ली, data और उसका link अपनी CV में डाला, इस तरह की चीजें डाली। Or yes, he did land a job in QMD. He was my junior. Do we only have to do some projects bhi kare, certifications bhi kare, the more the better? And can we be paid well after that? Of course. I'm not sure कि like हमारे पास electrical की industry में क्या pays होती हैं, but yes, we're well paid, inshallah. Okay, Nabil says, which libraries of Python should we focus on, and do we need to use these libraries in our role as a data analyst? Okay, Nabil, these vary. Normally आप focus करो NumPy पे focus कर लो, PySpark पे focus कर लो, Pandas पे focus कर लो for data frames. ये 3 libraries हैं जिन पे आप focus कर लो, you're good to go. Or do we use these libraries in our role as a data analyst? Sometimes yes, sometimes maybe इनको भी use नहीं करते, NumPy और Pandas को use करते हैं majorly. So yes, these 3 libraries are more than enough, I think, as a beginner, yes. Okay, Usman says, could you let me know if basic Python is enough for data engineering, or do I need to learn OOP concepts and its libraries too? Okay, Osama, let's be honest. I got a B+ in OOP, but I know nothing about OOP. I have never implemented it in my code, and मुझे काफी झाड़ पड़ी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ अब। बहरहाल OOP के कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा अप्लाई नहीं होते, सिंस वे डेटा एनालिस्ट, तो हमारी ज्यादातर कोडिंग SQL में होती है, जिसमें हम इतने ज्यादा OOP के कॉन्सेप्ट्स नहीं अप्लाई करते। पाइथन में जितनी कोडिंग होती है उसके लिए OOP के मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन अगर आप खाली बेसिक भी पाइथन कर सकते हो और आपको पाइथन की बेसिक लाइब्रेरीज जैसे मैंने बताया NumPy, Pandas पता है, तो यू आर गुड टू गो। इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो OOP एक एक्सपीरियंस की भी चीज है, जो कि मुझे लगता है थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा आपको आती है एक्सपीरियंस से। जब आप कोड लिखते हो तो उससे आप ज्यादा OOP से सीखते हो, तो OOP के लिए इतना परेशान नहीं हो। OOP के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े बहुत पता हो, अगर आप इंटरव्यू में आपके मेंशन्ड है OOP, बट या एज यू गो फर्दर आपको खुद ही समझ आने लगते हैं। Okay, Hamid says, can you give a bit more detail about sharing your projects in CV? How should one mention their projects in CV, and how should we? Okay, guys. Okay, Amal, how about at the very end, I just open my CV and show them कि मैंने projects किस तरह से डाले। Yes, that would be better and more time saving also. So we can just wrap up the questions in 5 to 10 minutes, and then you can do that. Perfect. Okay, हमीज कुछ और भी आगे कह रहा था, do we get SQL and how do we get? Okay, अच्छा ठीक है। हमीज यार YouTube देखो, YouTube पे ना लोग ऐसे लोग कोई भी डेटा सेट उठाते हैं, एडवेंचर कोड का कहीं से भी, और वो उस डेटा सेट से ना उठा के ना यूजफुल चीजें SQL की बना के उसी को अपना प्रोजेक्ट शोकेस करके कि भाई मैंने ऐसे डेटा फेच किया, और उसको अपनी CV में डाल देते होते हैं। आप SQL प्रैक्टिस करो, लीड कोड पे करो, हैकररैंक पे करो, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग स्क्रैच से ना YouTube के चीज से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं उसी तरह से प्रोजेक्ट्स। Okay, Muzammil, आपने क्वेश्चन पूछा या you still want to ask something?
No, I have already asked question. Okay, thank you. I'm just Okay, waiting Waleed for. says CV. Okay, right. Okay, Waleed says, I've heard from people that most of the companies still use Excel. No, not at all. Excel is not used, really. Excel is not really used in companies, not in software houses at least. That's what I've seen. Excel शायद use होती हो client को थोड़ी बहुत data fetch करके देने के लिए, या business analyst हो सकते हैं Excel पे काम करते हो, लेकिन no, Excel is not used. Okay, Aisha. Okay, thank you, Aisha. Okay, Osama Rafiq says, as a data engineer, should I also learn technologies like Hadoop and Spark? Okay, Osama, I always say the more the better. For like just if you're just jumping in the industry, having some knowledge of Spark and Hadoop will, of course, आपको एक edge देगी. But आपको as a beginner एक edge देगी. Yes, you should learn it, but I would say इट्स नॉट एग्जैक्टली कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आती तो आप जा नहीं सकते, लेकिन हाँ जहाँ पे एज की बात है तो डेफिनेटली थिंग्स लाइक दिस डू गिव एज. Fatma says, sorry guys. Fatma says, computer engineering graduate from NUST. I already have the skills and have a hands-on practice, of course. How can we land a job as a data engineer? Because all the companies have different selection criteria. Some technical tests, aptitude tests. So I haven't got any positive response from any. Okay, that's hard. How to figure out the job thing, because every company got different. फातिमा, सबसे पहले तो ये डू द रेफरेंस थिंग, लोगों को रीच आउट करो खुद से जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको टारगेट करके अपनी सीवीज भेजो, उनको बोलो आपको रेफर करें, उनको बोलो अपनी कंपनी से फॉलो अप लें कि आपका इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ. दूसरी चीज ये कि हाँ सबका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, कुछ लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं फॉर फ्रेशरीज, कुछ लोग कोडिंग के टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग बेसिक डिफरेंट टेस्ट लेते हैं. But I think being a computer engineering graduate, you can crack them all very easily. I believe in you. So yes, लैंडिंग अ जॉब अपनी सीवी पे आप आपने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स ही कर लिए होंगे, उन सबको ऐड करो. अगर आप वेब डेवलपमेंट की जॉब पे अप्लाई करो तो उससे रिलेटेड ऐड करो. अगर आप एआई की जॉब पे अप्लाई करो तो एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. इसी में अगर आप डेटा की जॉब पे अप्लाई करो तो अपनी डिग्री के ही डेटा वाले प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट अच्छा सा करो, अपना FYP हाईलाइट करो, उन सब चीजों को हाईलाइट करो. एंड yes, again, the reference thing, guys, is great. Okay, Ali Hassan, have you asked the question or not? Ali, if you haven't asked your question, the floor is open and आप पूछ सकते हैं. Or we will move on to the next. Okay, in the meanwhile, I'll ask Israr's question. Differentiate data science and data analysis. Data science is like data science. What's data science? Data science is basically कि आपके पास एक डेटा आया है, आपके पास डेटा आया है एक फ्लाइट की कंपनी का. आपके पास डेटा आया है कि ना मंडे ट्यूसडे वेंसडे को सबसे कम लोग फ्लाइट्स लेते हैं, मतलब जनरली एक ऐसा ट्रेंड चला है. आपके पास एक साल का पिछले डेटा है, उसमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे को लोग सबसे कम फ्लाइट्स लेते हैं. तो अब आप एक फ्लाइट वाली कंपनी में काम कर रहे हो और आपको उनको असिस्ट करना है कि उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. तो आप ये करोगे कि आप उस डेटा कंपनी को बताओगे कि पिछले पूरे साल में इतने कम सेंस लोगों ने फ्लाइट्स ली थी मंडे ट्यूसडेज वेंसडेज को. आप एक डेटा मॉडल डेवलप करोगे जो कि प्रिडिक्ट करेगा. डेटा साइंस में होती है प्रिडिक्शन. हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए आप फ्यूचर का डेटा प्रिडिक्ट करते हो. वो प्रिडिक्ट करेगा कि हो सकता है इस साल भी गर्मियों में लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडेज की बहुत कम टिकट्स लें. तो अब आप हो सकता है आप एक डील लगा दो कि भाई मंडे ट्यूसडे वेंसडेज की टिकट्स पे सेल है और फ्राइडे सैटरडे संडे की आप प्राइसिंग महंगी कर दो. इस तरह से डेटा साइंस वर्क्स. मैंने तो फ्लाइट्स की एग्जांपल्स दिए, बहुत सारी ढेर सारे एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं डेटा साइंस के मॉडल्स की. Sorry. What Abdurrahman says, what type of data do we get to analyze? I'm a biotech student planning to do data science internship. Okay, so good question, Abdurrahman. I have worked in a healthcare company previously and now I'm working with an Oracle partner. Healthcare की company में मेरे पास healthcare का data आता था ढेर सारा, patients के data, patients के vitals, patient की documents, patient की medical history, उनकी gynecologist की history, उनकी सब चीजें आती थी मेरे पास. पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें आती थी पेशेंट्स की. तो मैं उस डेटा पे मोस्टली काम करती थी. सिंस नाउ आई एम वर्किंग विद एन ऑरेकल पार्टनर, तो मेरे पास अब टन्स ऑफ डेटा आता है. कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज का आता है, कुछ कॉफी की कंपनीज का आता है. तो अब डेटा सेट्स वेरी करते हैं. Specific data sets to biotech, that's, I mean, you can go to healthcare maybe, but that will limit you, I think.
Acha, Aves, you can have my LinkedIn, sure. You can search for Momena Asif and maybe write Gosas or something, you'll find it. Okay. Okay, what's the complete workflow? Oh, Waleed, you've asked me a very lengthy question. बहुत लंबा workflow है, लेकिन इतना लंबा नहीं होता. डेटा आता है, डेटा क्लेंस करते हो और डेटा माइग्रेट कर देते हो आप ETL में. रिपोर्ट्स का डेटा आता है, आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, रिपोर्ट उस तरह से फेच करते हो, उसकी फॉर्मेटिंग करते हो. इसके अलावा और भी कुछ टास्क होते हैं सर्वर मेंटेनेंस के, बट दे गो ऑन, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं. Haris says actually 3 years of experience in civil engineering. I've always been passionate, of course. That's very good, but couldn't transition. यार ऐसा ही होता है. So I started my masters. That's excellent. That's an excellent choice. यार हर दुनिया बोलती है, दुनिया मुझे भी अभी बोल रही है, why are you not an electrical engineer? And I'm trying to make them understand कि मैं क्या practice करूँगी electrical engineering पाकिस्तान में. I'm trying to get in big data companies, but apparently the only issues I'm facing. Okay, I mean, see, applying for the fresh positions, जो कि entry level positions लेती हैं, उसके अलावा what you can do it, आप I think आप fast से कर रहे हो ना, तो fast की मेरे ख्याल है fast की placement वाली जो department होगा, ask them to place you to relevant companies, ask them to refer you to relevant companies. एक तो वो भी वर्क करेगा. दूसरी चीज ये अपनी सीवी में जो भी आप मास्टर्स इन डेटा साइंस में प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना, वो भर दो. वो सब रेलेवेंट होंगे, चाहे वो कोई छोटा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, भर दो. फ्रेश लेवल जॉब से अप्लाई करो, 1 to 2 years जॉब से अप्लाई करो, एंड डू द रेफरल्स वाली थिंग. ऑफ कोर्स आई हैव डेवलप्ड मेनी प्रोजेक्ट्स. उन सबको डाल दो, उन सबको डाल दो. Add all the projects in. Achha, you have already added them. Okay. Ask for referrals as well. And ask your company's placement department also. I'm sure they'll help you. Do you have any tips for landing remote jobs? I've been working as data analyst for a year. Okay. Okay, Hamza, I think Hamza, you have a year of experience. पैसे पहले तो मैं सबको बोलती हूँ कि जितने भी fresh grads हैं जिनका 1-2 साल का experience है, वो लोग लाजमी on-site jobs करें. That helps them know more. उनको हैंड्स ऑन ज्यादा करने का मौका मिलता है, उनको सीनियर्स की गाइडेंस ज्यादा मिलती है. लेकिन इफ स्टिल यू नीड अ रिमोट जॉब, मैं भी रिमोट जॉब ढूंढ रही हूँ, एंड आई नीड अ रिमोट जॉब दैट पेज मी इन डॉलर्स. तो हम सब अप्लाई कर रहे हैं. But yes, other than that, many companies offer hybrid. Even my company offers hybrid as well. So yeah, I work from home 2 or 3 days a week. There are many companies, RBSoft, SSI, Educative, if I'm not wrong. A lot of companies. You can look for them. Definitely look for them. Acha, Arif says I'm applying for multiple positions. No, not one resume. सब resumes को जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको उस हिसाब से टेलर करो. दूसरी चीज जो मैं करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर किसी एक जॉब की एक रिक्वायरमेंट है ना, फॉर एग्जांपल उसकी रिक्वायरमेंट है पावर BI, SQL, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं अपनी सीवी को चेंज करती हूँ. अपनी सीवी में लिखती हूँ वही वाले सिर्फ SQL और पाइथन के प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो एक और चीज जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट उन्हीं वर्ड्स के अराउंड घुमाती हूँ. दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक दैट विल हेल्प यू लैंड जॉब्स. कि आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिंक्डइन पे मेंशन है उसी के वर्ड्स, उसी के कीवर्ड्स यूज करते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज करो. जितना आप अपनी सीवी पे अप्लाई करते हुए काम करोगे उतना ज्यादा आप कर सकोगे. तो हर दफा आई थिंक अगर आपने एडिटर खोला हुआ है ना, आप दस्ती चेंज कर सकते हो अपनी CV. तो yes. Okay, just waiting for your CV. Okay, last question is Python, SQL, and Power BI enough for beginning? Yes, it's enough. It's more than enough. Yes, definitely. उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब को टारगेट कर रहे हो, तो अगर उसमें कोई और स्किल्स मेंशन है तो मे बी यू कैन लुक एट दोस, maybe have a look at those. But yes, this is enough for an entry level job in data engineering. Okay. Okay, can we do freelancing in the field of data? If yes, then how? Of course, very much. You can freelance in the field of data. Yes. Upwork, Fiverr, your best friend. सबसे पहला आपको मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है client, as everybody says, but it's doable. It's doable. You guys can do it. I know a guy I know who is like 25 years senior to me. He just writes one sentence, build an index on one query and makes $500 out of it. So I think all of us can. But yes, of course, उनके फिर उसी तरह से पिछले प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनकी हिस्ट्री भी है. तो हमारे लिए इस स्टेप पे होता है सबसे मुश्किल फ्रीलांसिंग में पहला स्टेप है. आपको पहला क्लाइंट मिल गया, उसका काम डूएबल हुआ और आपने कर दिया, you're set for a while. So yes,
I think these are all the questions, Amul. Yes, these are all the questions. If anybody has any question, they can raise their hand or type in. This is the last question we will be taking. And before I close the floor for questions, there's a question that I have as well. Momina, what are the challenges that you face as a data engineer or a data analyst or a data scientist? What are the challenges that you face in this field, and how can you prepare yourself to overcome them, and what are the tips to overcome them? Challenges. Okay, that's a good question. The first challenge that I face is communication. क्योंकि skills आप अपने लिए सीख सकते हो, communication आप सीख सकते हो, आप अपनी सही कर सकते हो, but you need to see who is the client who is working with you. Sometimes the client does not communicate as that well, और उसको नहीं पता होता, तो आपका patience level, आपका tolerance level, client आपसे पहले कुछ मांगता है, बाद में आपको उसी report, उसी data के गिर्द 10-12 दफा घुमाता है कि ये नहीं. So you need to be very clear. जब मुझे ये पता चल गया ना कि यार ये client है मेरा, इसको for example English पे इतनी अच्छी command नहीं है, और इसने मुझे घुमाना ही घुमाना है, उसने मुझे पिछली दफा भी घुमाया था, ये मुझे इस दफा भी घुमाएगा, तो आप पहली दफा में करते हो, उससे सब चीजें, मतलब treat your client as a baby, like you who's in kindergarten. You need to ask them, ब्रेक डाउन करके सारी चीजें, वो जो रिक्वायरमेंट कहे, आप अगर पहले 5 मिनट उसके साथ लगाने की बजाय 1 घंटे की मीटिंग कर लो, take all the requirements, gather all the data, gather all the important stuff, वो जो आपको 4 requirements बताते हैं, उन 4 को एक एक करके उन पे बात करो, उनसे पूछो exactly क्या चाहिए, इस पहली रिक्वायरमेंट में उसको exactly क्या चाहिए, ऐसे चाहिए, इस तरह से चाहिए, फिर क्या चाहिए, उससे सब चीजें पहले ही डिस्कस करो. दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स. आपकी अपनी कम्युनिकेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड सेकेंडली, नो योर क्लाइंट. व्हेन यू नो योर क्लाइंट, यू नो के व्हाट क्वेश्चंस, कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो वो ऑब्जेक्शंस लेके आएगा, तो वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करते हैं कि आप काम अच्छे से डिलीवर कर सको. Thank you so much. It was really insightful. We can share the resume and the CV for like a few minutes. You can go through it for a bit and then we'll end. Okay, perfect. Okay, guys, here's my CV. I think मुझे अभी बिल्कुल recent वाली नहीं मिली, but this will do. Okay. अच्छा, this is what my CV looks like. ये मैंने Flow CV से बनाई है, flowcv.io. ठीक है. This has my name, this has my LinkedIn, this has my Gmail, this has my phone number. इसमें मैंने अपनी एजुकेशन मेंशन की भी है, लेकिन एजुकेशन इस साइड पे मेंशन है. ठीक है. उसके बाद मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा गोसास में जो है, उस पे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं. अब ये प्रोजेक्ट्स में हर दफा यही रेज्यूमे नहीं भेजती. अगर कोई मुझसे किसी और तरह की डिमांड्स कर रहा है, तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को उन डिमांड्स पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो मैं वो वाले पॉइंट्स को आगे ले आती हूँ, इनको हटा देती हूँ. इसी तरह हेयर इज माई QRMD's एक्सपीरियंस. उसके बाद आई थिंक अभी शायद शो नहीं हो रहा. उसके बाद आप लोग मेरे प्रोजेक्ट्स देखें. आइडियली मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए. जो कि एक चीज मैंने मिसिंग है, वो ये है कि मैंने अपनी पिछली कंपनी के और इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स जो है, जिन पे मैं मेजरली काम करती हूँ, वो इस प्रोजेक्ट सेक्शन में नहीं डाले हुए. तो अगर यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यू गाइज ऑल्सो नीड टू एड the major projects you've worked on in your previous company or are you're working on in your current company, उनको भी डालो. So this is one project that I worked for in my previous company. This is my FYP, जो कि अभी तक डला हुआ है. हैरत की बात है. This is my semester project that was relevant. तो मैंने ये trained a model था for detecting COVID-19 in patients. तो मैंने ये सारे projects डाले हुए हैं. इसी तरह आपका projects का tab, अगर तो आप fresh grad हो ना, projects का tab आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा, मतलब जो कि आपका सब कुछ शोकेस कर सके. इसी तरह मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं. इस वाले सर्टिफिकेशंस में मैंने अपने वो लिंक्स नहीं डाले हुए. दिस इज अ बैड थिंग. आई शुड हैव एडेड माय लिंक्स एज वेल, ताकि वो मैं क्लिक करूं और जो भी रिक्रूटर है वो मेरे लिंक्स तक पहुंच जाए. ये सारे मैंने अपने सर्टिफिकेशंस डालनी है. इसके अलावा मैंने अपने स्किल्स में उन्हीं स्किल्स को हाईलाइट किया है जो कि स्किल्स आर एक्चुअली आस्क्ड फॉर. अगर कोई मेरे से डेटा वेयरहाउसिंग का स्किल मांगेगी जॉब, तो मैं वहां पे डेटा वेयरहाउसिंग भी अपने स्किल्स में डाल दूंगी. और लैंग्वेजेस एंड इंटरेस्ट,
But yeah, that's languages and interests are not much needed. But what you need to focus on is certificates and projects. And if you have any relevant experience, बेशक वो किसी भी internship है, कुछ भी है तो उसका. Also, I have made my CV using flowcv.io, flowcv.io, and this is my CV. All right, thank you so much. I hope it helped to whoever Ma'am, can you wanted it. Ji. hello? Can you give me Yes. feedback on my resume if I share here Uh, or LinkedIn? Muzammil, you can share your resume on LinkedIn and I can give you Okay. feedback on that. Okay. Thank you very much for your time. Welcome. Thank you so much, Momina. It was a great session, very insightful for me as well. I am an economics undergrad, so it was really great to get this insight on data science and stuff. So thank you so much. It was very interactive. हमें बहुत मजा आया, and the Q&A session was amazing as well. For the end, I would like to announce for whoever is in the meeting कि AI Data Art का boot camp start होने वाला है. So please make sure to visit our LinkedIn and check out the boot camp, register for it. It's going to be a great chance for you to polish your data skills. So thank you so much, Momina, and thank you to everybody who joined. Thank you so much, guys. Best of luck. Okay. Thank you. Love this.